everyone. In the last video of this lesson heritage, we have done that how great India is, and the people who are living in between Himalayas and Indian Ocean are called Indians, and we have seen that heritage can be divided into two parts. One is natural heritage and second is cultural heritage. Natural heritage, that is really features mountains, lakes, rivers, ponds, deserts, everything comes under natural heritage. And we have seen in the last video that how our forefathers have taught us to take care and live with harmony with our ecosystem, with our environment, and not to do any type of harm to any creature, so that we can live in harmony and we can protect all our natural resources. Coming to the next thing, today we are going to have the second part of heritage, that is cultural heritage. Cultural heritage, India has gifted to the diverse and rich culture heritage. हमारे यहाँ पे अगर आपने देखा होगा, we have a varied and rich cultural heritage. There are so many different things, different religions, different different languages. In the same language, like if you are in the गुजरात के अंदर ही अगर सौराष्ट्र का जो है कल्चर में थोड़ा सा फर्क है, हमारा जो इधर साउथ गुजरात का कल्चर में थोड़ा फर्क है, सब जगह काफ़ी वेरिएशंस है. बट स्टिल आपने देखा होगा कि दशहरा सबकी एक साथ मनाई जाती है, दिवाली सबकी एक साथ आती है, और मतलब चाहे चीज़ों में इतनी वेरिएशन है, स्टिल वी आर बाउंडेड विथ ए कॉमन थिंग. That is the greatness of India. We have varied cultures, but still we have one. जैसे कहते हैं ना, मोती डिफरेंट कलर के मोती को पिरोता है एक धागे से, ऐसे ही है something is that which connect every one of us in India. So that is the variation, that is the culture we have in India. The culture starting from Aryans, custom, Kushan, Huns, Persians, Turks, Arabs, Mughals, British, French. These all came to India. They gave their thing. We have accepted them. We enriched our culture with them. And before the coming of these Britishers and French, we didn't had this caste system. After that, they came caste system in India. Indian culture from the exchange between all this has become rich. इन सबके साथ ये लोग जितने भी लोग हमारे इधर इंडिया में आए, उससे हमारा कल्चर और भी रिच हो गया और भी अच्छा हो गया. If we see the prehistoric civilizations like Indus Valley civilization and all, we found many of the things which makes us proud that the culture, that the civilization existed long before the present thing. उस टाइम के अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर अगर देखेंगे, तो उसके अंदर हम बहुत सारे गॉडेसेस के जो मूर्तियां हैं वो भी मिली हैं, और ह्यूमंस, एनिमल्स, और सेवरल टाइप्स ऑफ टॉयसेस, एवरीथिंग वी फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन. A sculpture as of beard man and the statue of dancers, one feels self-esteem and pride in our cultural heritage. उसके अंदर जो इंडस सिविलाइजेशन के अंदर जब खुदाई में जो हमको चीज़ें मिली है, उससे पता चलता है कि मतलब अभी जो हम सोच रहे हैं अपने को मॉडर्न ये सब सोच रहे हैं, ये पहले से ही उनके थिंकिंग में था. हम लोग मतलब कुछ नया नहीं किया है, उन लोगों ने ऑलरेडी ये सब चीज़ें किए हुए हैं. दैट मीन्स दैट शोज दैट हाउ पीपल आर एडवांस्ड इन दोज एजेस ऑल्सो. Further, when we look into the figure of bullock or lion on an inverted lotus of Mauryan
era. The statue of Buddha in the medieval form, meditative form, or the Kalakand statue of Jain तीर्थकंस ऑफ के, और या फिर हम मतलब ये भी ये जितने भी पुराने, अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन उस तरफ से जो बुद्धा को जो मेडिटेटिव पोजीशन में जो देखा गया, या जितने भी स्कल्पचर्स देख के लगता है कि मतलब काफ़ी मतलब उनके पास काफ़ी नॉलेज था. अगर आप एक बार भी एल्लोरा और एल्लोरा केव्स देखने जाओ, अजंता एल्लोरा केव्स, दे आर ऑल कार्व्ड आउट ऑफ माउंटेन्स के अंदर से उनको कार्व किया गया है. दे आर सच ए रिच कल्चरल हेरिटेज of our India, that you can see how much time people took to carve out those things. इतने बड़ी बड़ी गुफाओं के अंदर आप देखोगे तो इतने सारे विहारास हैं. इवन one big shivling is also there. So lot of things are there, and they are all carved out of mountains. So when we look at those things, we feel really proud of our Indian culture. Our cultural heritage accommodates places, buildings, sculptures, stupas, viharas, chaitanyas, temples, mosques, tombs, forts, etc. मतलब इतने सारे चीज़ें हैं जो हम देखेंगे तो ये सब कल्चर हमें पता चलता है कि मतलब कितना वेरिएशन था कल्चर के अंदर भी, कितना वेरिएशन था हमको ये देखने को मिलता है. इसके बाद जो फ्रीडम मूवमेंट है, फ्रीडम मूवमेंट के अंदर जो काफ़ी चीज़ें हमने देखी, जैसे साबरमती आश्रम है, या फिर हमारा जो ये सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था, या बारडोली आंदोलन है, ये सब के भी अलग अलग तरीके से ये सब चीज़ें भी कल्चरल हेरिटेज में ही आती हैं, जो उस टाइम पे लोगों ने हमारे फ्रीडम के लिए लड़ा था. तो वो जो प्लेसेस हैं उसको भी हम अभी देख सकते हैं. एंड वी गेट द थिंग, वी गेट द नॉलेज हाउ द थिंग्स हैव प्रोसेस्ड. और पुराने ज़माने के मतलब हमारे इधर कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा इसमें लिखा है अपना हनुमान चालीसा में देखा है कि उसमें लिखा हुआ है कि एक श्लोक है, एक कपलेट है, उसके अंदर बताते हैं कि जो हनुमान जी हैं वो इतने ऊंचे सूरज को एक फल समझ के निकल गए थे. लीलियो ताही मधुर फल जानू. तो उस जब वो जो पूरी कपलेट है उसमें बताया गया है कि वो कितना दूर है, जो सूरज है वो धरती से कितना दूर है. और जो उन्होंने जो बताया ना, एंड इट इज फाउंड बाय नासा दैट द डिस्टेंस विच इज टोल्ड इन द हनुमान चालीसा इज एग्जैक्टली द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन. सो मतलब हमारे कैलेंडर्स हो गए, हमारे एस्ट्रोलॉजी हो गया, हमारा जितने भी आयरन, लिटरेचर, रिलीजन, युद्ध, जियोलॉजी, बॉटनी, वास्तुकला, रिलीजन, रिपब्लिक, जुडिशरी, लेजिस्लेशन, इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज ऑफ इंडिया. ये अगर अभी काफ़ी आप व्हाट्सएप वगैरह में देखते हो तो कई चीज़ें, पुरानी चीज़ें पता चल रही हैं कि, और ये इतने साल पुराना है. रिसेंटली वियतनाम में एक सैंडस्टोन का उन्होंने एक्सकवेशन किया वहाँ पे, तो वहाँ एक स्टोन का बड़ा सा शिवलिंग मिला वियतनाम में, जबकि वहाँ पे हिंदुइज्म इतना है नहीं, लेकिन वहाँ पे पहले था, अभी नहीं है. But means that Indian culture existed long before this modern era. Cultural heritage of Gujarat. The places having cultural heritage and archaeological importance are लोथल आप लोगों ने सबने सुना होगा, और रंगपुर, ये सुरेंद्र नगर में है. धोलवीरा जो है बहुत इम्पोर्टेंट एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है. और ये द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज, विक्ट्री ऑफ टावर,
Vadnagar, stone inscription of Ashoka at Junagadh, Sun Temple of Modra, Gate of Champar, Rudra Mahalaya, Siddhapur, Mansar Lake of Viramgam, जामा मस्जिद ऑफ अहमदाबाद। ये सारे इन्होंने वेरियस वो दे रखे हैं आपको, वेरियस प्लेसेस के नाम दे रखे हैं। तो ये जो अभी ये जो आपका धोलावीरा है, धोलावीरा इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट विच वाज एक्सकवेटेड रिसेंटली, एंड इफ देयर यू कैन फाउंड इवन द वाल्व बोलते हैं ना, जो पानी का वाल्व, मतलब द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एवरीथिंग यू कैन सी ओवर हियर। रानी की वाल्व जो है वो भी वहाँ पे है। ये सब चीज़ें जो है, हाउ पीपल आर foresighted in storing water and in rain harvesting, everything we can see in these places. And when you come to the religious places, we have Somnath, that is one of the important Jyotirling of 12 Jyotirling है ऑल ओवर इंडिया में, और उसमें से पहला नाम जो आता है वो सोमनाथ का आता है, और वो है आपके गुजरात में। वेल नोन रिलीजियस, सोशल एंड टूरिज्म ओरिएंटेड प्लेसेस इन गुजरात आर, मतलब जो गुजरात में जो टूरिज्म स्पॉट्स हैं जो हैं वो कौन सा है? एक पोलो फॉरेस्ट है, वो कहाँ पे है? विद्यानगर में है, और जैन एंड बुद्धिस्ट केव्स आर सीन। जैन और बुद्धिस्ट केव्स भी हैं यहाँ पे गुजरात में। श्यामला जी और कोटेश्वर, तानाजी देव। एक और चीज है हमारे यहाँ पे जो कल्चरल हेरिटेज में जो है, एक काइट फ्लाइंग और एक नवरात्रि सेलिब्रेशंस, दे स्टैंड आउट इन होल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरे दुनिया में इसका जो है पूरा, मतलब पूरी दुनिया में ये फेमस है। एक नवरात्रि सेलिब्रेशंस हमारे यहाँ गुजरात के, और दूसरा काइट फ्लाइंग फेस्टिवल्स ऑफ आवर गुजरात, दे आर फेमस all over the world. People are copying us, people are celebrating the same thing as we do in Gujarat. And then there is various fairs are organized on particular days. आपने सबने 8th क्लास में पढ़ा है तानेतर फेयर, जो कि भाद्रपद मास यानी ये गणेश चतुर्थी के आसपास होता है, क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ जो आपका गणेश चतुर्थी है भाद्रपद मास के चौथे दिन से शुरू होता है, चौथे दिन को होता है, उसी के टाइम पे ये तारनेतर फेयर होता है जो कि 3 दिन का होता है। तो आपने ये सब पता, लेकिन बाकी भी काफ़ी सारे फेयर्स हैं जो कि होते हैं कई, जैसे पुष्कर मेला होता है आपका राजस्थान में, और राजस्थान में पुष्कर मेला प्रसिद्ध है ओनली एनिमल्स ट्रेडिंग के लिए। यहाँ हॉर्सेस हैं, बफेलोस हैं, काउस, ये या डोंकीज, ये सब चीज़ें जो है लोग खरीदते और बेचते हैं। ऐसे ही कई सारे फेयर है आपका। हमारा गिर, एक और हम लोग यहाँ पे फेमस है गिर फॉरेस्ट का में होता है। तो ये सब जो हैं वो काफ़ी फेमस थिंग्स हैं, एंड दीज आर द प्लेसेस here given in a chart in the page number, I think 4th of this lesson, 4th page of this lesson. You got many 15 places where the fairs are organized, and each fair has its own important or tithi or time. Okay, so you all go through this. So tomorrow I'll be giving you I'll be loading the next video. Okay, thank you.